Hello students, myself Bafna ma'am. Now we will be continuing the role of conciliator. Last class we had dealt about the conciliation proceedings and now we will be continuing with the role of conciliator. So here section 67 tells about the conciliator shall assist the parties in an independent and impartial manner. So he is going to assist the party in an independent and impartial manner in their attempt to reach an amicable settlement of their disputes. Whatever the disputes it has been there, it can be settled amicably, peacefully in sense. The second point is the role of conciliator. He shall be guided by the principle of objectivity, fairness and justice. See, whoever the conciliator will be, he shall be guided by the principle that he should have the fairness and justice towards the parties who are at the dispute, giving consideration to, among other things. See, he should give consideration to, among other things, the rights and obligations of the parties. What are their rights and their obligations of the parties? The usage of trade. He should see all the usage of trades. Usage of trades यानी व्यापार का उपयोग. इन व्यापार का उपयोग किस प्रकार के पार्टीज कर रहे हैं, कंसर्न एंड द सर्कमस्टेंसेस सराउंडिंग द डिस्प्यूट. अगर कुछ डिस्प्यूट है, क्या सर्कमस्टेंसेस है, क्या सराउंडिंग है उनके व्यापार की यानी ट्रेडिंग की, क्या सर्कमस्टेंसेस है, सराउंडिंग्स है, इंक्लूडिंग एनी प्रीवियस बिजनेस प्रैक्टिसेस बिटवीन द पार्टीज. अगर कुछ ऐसी बिजनेसेस है जो प्रीवियस बिजनेसेस है, जो पार्टीज है, जो प्रैक्टिसेस उनकी चल रही है, जो प्रैक्टिसेस उनके बिजनेस की प्रीवियस में चल रही है पार्टीज़ की, कि उसके सराउंडिंग के, उसके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से उनका डिस्प्यूट तो नहीं चल रहा है. सो ही शुड बी गाइडेड, द रोल ऑफ द कंसीलिएटर दैट ही शुड बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस एंड जस्टिस. फेयरनेस एंड जस्टिस उसको रखना है. ओके. थर्ड पॉइंट हियर इज the conciliator may conduct the conciliation proceeding in such a manner as he considers appropriate, taking into account the circumstances of the cases, the wishes the parties may express, including any request by a party that the conciliator hear oral statement and the need for a speedy settlement of the dispute. यहाँ पे the conciliator कंडक्ट करता है जब कंसिलिएटिंग प्रोसीडिंग्स इन सच ए मैनर कि भाई जो विशेस है, जो रिक्वेस्ट है पार्टीज़ की, जो एक्सप्रेस करते हैं, जो कंसिलिएटर शुड हियर द ओरल स्टेटमेंट. कंसिलिएटर सुनेगा वो ओरल स्टेटमेंट, तो ओरल स्टेटमेंट सुनने से उसका स्पीडी डिस्पोजल हो जाएगा मैटर का, यानी सेटलमेंट फटाफट से हो जाता है. तो फोर्थ पॉइंट हियर इज द conciliator may at any stage of the conciliation proceedings make proposal for a settlement of the dispute. Such proposal need not be in writing and need not be accompanied by a statement of the reason therefore. So, at any stage of conciliation proceedings, if any proposal for the settlement of the dispute is there, such proposal need not be in writing. तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ राइटिंग पे ही हो, and need not be accompanied by a statement of the reason therefore. Okay? So next is administrative assistance. See, administrative assistance, section 68, it tells that in order to facilitate the conduct of the conciliation proceedings, the parties or the conciliator, with the consent of the parties, may arrange for administrative assistance by a suitable institution or a person. Suitable institution or person जो रहते हैं इंस्टीट्यूशन, द कंसिलिएटर और पार्टी के कंसेंट से कंसिलिएटर और पार्टीज अरेंज कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो गाइडेंस दे सके कंसिलिएटर को. ओके. सो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस कैन बी टेकन. नो कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज. द कंसिलिएटर मे इन्वाइट द पार्टीज टू मीट हिम और मे कम्युनिकेट विथ देम orally or in writing.
तो अभी कंसिलिएटर इनवाइट करता है पार्टी को, तो उनका कम्युनिकेशन या तो ओरली हो सकता है या राइटिंग में हो सकता है. ही मे मीट और कम्युनिकेट विथ द पार्टीज टुगेदर, ओके, और विथ ईच अदर सेपरेटली. या तो वो कम्युनिकेट अलग से भी कर सकता है, साथ में भी कर सकता है, जैसे जैसे उनका कम्युनिकेशन रहता है उस हिसाब से वो कर सकते हैं. और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये बताते हैं, अनलेस द पार्टीज हैव अग्रीड अपॉन द प्लेस वेयर द मीटिंग विद द कंसिलिएटर आर टू बी हेल्ड, सच प्लेस शैल बी डिटरमाइंड बाय द कंसिलिएटर. कहाँ पे मीटिंग करनी है दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द कंसिलिएटर, यानी कंसिलिएटर बताएंगे. आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स. तो प्रोसीडिंग्स आफ्टर कंसल्टेशन से ही होगा कि कब कहाँ कैसे करना है करके. So disclosure of information. When the conciliator receives factual information concerning the dispute from a party, he shall disclose the substance of that information to the other party, in order that the other party may have the opportunity to present any explanation which he considers appropriate. जब conciliator को dispute की जो फैक्ट्स मालूम होता है, जो बातें मालूम होती है, तो इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन दूसरे पार्टी को बता सकता है और दूसरा पार्टी उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे सकता है. बट व्हेन ए पार्टी गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन टू द कंसिलिएटर सब्जेक्ट टू स्पेसिफिक कंडीशन that it be kept confidentially, the conciliator should not disclose that information to the other party. अगर कुछ पार्टी इन्फॉर्मेशन ऐसी बता देता है कंसिलिएटर को और कंसिलिएटर को कहते हैं कि भाई आप ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियली रखेंगे, तो कंसिलिएटर उसको डिस्क्लोज नहीं करेगा अदर पार्टी को. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑपरेशन ऑफ द पार्टीज विद कंसिलिएटर. The parties shall in good faith cooperate with conciliator and comply with the request made by conciliator to submit written materials, provide evidence and attend meeting. यहाँ पे जो पार्टीज है इन गुड फेथ कोऑपरेट करेंगे कंसिलिएटर के साथ, एंड जो रिक्वेस्ट कंसिलिएटर देते हैं कि भाई आप रिटर्न मटेरियल्स या एविडेंस है या कुछ मीटिंग से आप अटेंड कीजिए, तो इट शुड बी कोऑपरेटेड. नाउ सेटलमेंट एग्रीमेंट. अभी यहाँ पे कुछ सेटलमेंट एग्रीमेंट है, तो उसके हिसाब से कैसे कंसिलिएटर कंप्लाई करेंगे. सी व्हेन इट अपीयर्स टू द कंसिलिएटर दैट देयर एग्जिस्ट द एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट. अगर कंसिलिएटर को लगता है कि भाई अभी सेटलमेंट कुछ होने की संभावना है, विच मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज, अगर एक्सेप्टेबल है पार्टीज को, ही शैल फॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ ए पॉसिबल स्टेटमेंट एंड सबमिट देम टू पार्टीज फॉर देयर ऑब्जर्वेशन. तो कंसिलिएटर सबमिट कर सकता है पार्टीज को कि भाई आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे आपको सेटलमेंट हो सकता है. आफ्टर रिसीविंग द ऑब्जर्वेशन ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टीज रिसीव करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन रिसीव करते हैं कि भाई हाँ हो सकता है, द कंसिलिएटर में रीफॉर्मुलेट द टर्म्स ऑफ ए पॉसिबल स्टेटमेंट. तो कंसिलिएटर क्या कर सकते हैं, ही में रीफॉर्मुलेट, उसको जो सेटलमेंट की बातें हैं उसको रीफॉर्मुलेट कर सकते हैं. टर्म्स ऑफ द पॉसिबल सेटलमेंट, यहाँ पे एक टर्म है पॉसिबल हो सकता है सेटलमेंट इन द लाइट ऑफ सच ऑब्जर्वेशन. आप ऑब्जर्व कीजिए इस बात पे आपको सेटलमेंट हो सकता है यहाँ पे करके. सो इफ द पार्टीज रीच एन एग्रीमेंट कंक्लूजन ऑन द सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, अगर पार्टीज कंक्लूजन सेटलमेंट जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके ऊपर कंक्लूजन निकलता है, दे में ड्रॉ अप एंड साइन ए रिटन स्टेटमेंट एग्रीमेंट. तो पार्टीज वहाँ पे ड्रॉ अप कर सकती है और साइन ए रिटन स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट लिखा रहता है उसके ऊपर साइन कर सकती है. इफ रिक्वेस्टेड बाय द पार्टीज द कंसिलिएटर में ड्रॉ अप, अगर पार्टीज रिक्वेस्ट करती है तो कंसिलिएटर में ड्रॉ अप और असिस्ट द पार्टीज, या तो ड्रॉ अप कर सकती है या असिस्ट पार्टीज को असिस्ट करती है इन ड्रॉइंग अप द सेटलमेंट एग्रीमेंट. तो यहाँ पे सेटलमेंट एग्रीमेंट हो सकता है करके. See, when the parties sign the settlement agreement, it shall be final and binding on the parties and the person claiming under them respectively. तो यहाँ पे फाइनल हो जाता है और बाइंडिंग हो जाता है पार्टीज के ऊपर, जो कोई सेटलमेंट हुआ एग्रीमेंट के ऊपर, तो इट विल बी बाइंडिंग रेस्पेक्टिवली ऑन बोथ द पार्टीज. 4th पॉइंट ये यहाँ पे, the conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy thereof to each of the parties. तो कंसिलिएटर क्या करेगा, अथेंटिकेट करेगा सेटलमेंट का जो अग्रीमेंट है उसके ऊपर सील लगाएगा, यानी जो अथेंटिकेशन की सील रहती है कि भाई अभी सेटलमेंट हो गया है, और वो कॉपी को पार्टीज के हाथ में दे देगा. ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हियर इज स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट.
The settlement agreement shall have the same status and effect as if it is in arbitral award. तो अग्रीमेंट का स्टेटस क्या होता है, जैसे आर्बिट्रल अवार्ड में होता है उसी इफेक्ट में सेम इसका भी इफेक्ट, इसका भी स्टेटस उसी हिसाब से ही रहता है. आर्बिट्रल अवार्ड जैसे आर्बिट्रेशन में होता है उसका स्टेटस कंसिलिएशन में भी उसी का स्टेटस मिलता है. ऑन अग्रीड टर्म्स ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द डिस्प्यूट रेंडर्ड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल. सो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार ऑब्जर्व किया व्हेन द कंसीलिएटर हेल्ड सम मीटिंग. सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में हरीश दयाराम ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि अगर कंसीलिएटर मीटिंग हेल्ड करता है विद द पार्टीज एंड ड्रू अप सेटलमेंट एग्रीमेंट हिमसेल्फ इन सीक्रेसी, अगर खुद ही सेटलमेंट एग्रीमेंट सीक्रेसी से सील्ड कवर में डालकर हाई कोर्ट में जाकर उसको कंफर्म करता है उस एग्रीमेंट को कि भाई हाँ आपका एग्रीमेंट सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया और कंफर्मेशन लेके आता है, तो जो सेटलमेंट एग्रीमेंट रिसीव किया है कंसिलिएटर वॉज होली अनसपोर्टेबल, तो वो अनसपोर्टेबल कहा गया है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है द सेटलमेंट एग्रीमेंट टू बी बाइंडिंग एंड टू हैव द स्टेटस ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड मस्ट बी साइंड बाय द पार्टीज. अगर खुद ही जाके वो खुद कवर लेके विथ सीक्रेसी से कवर सेटलमेंट का कवर लेके हाई कोर्ट में कंफर्मेशन लेके आए और फिर बोलते हैं ये सेटलमेंट बाइंडिंग है, तो इट विल नॉट बी बाइंडिंग अनलेस एंड अनटिल द पार्टीज सिग्नेचर आर देयर. पार्टीज का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है यहाँ पे. ओके, द स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट. सो द बाइंडिंग क्या है, अगर सेटलमेंट हुआ है दो पार्टीज के बीच में तो उस अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज का सिग्नेचर होना बहुत ज़रूरी है. सो कॉन्फिडेंशियली, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियली क्या है कि कंसीलिएटर एंड द पार्टी शैल कीप कॉन्फिडेंशियल ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू द कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स. जो प्रोसीडिंग्स में जैसे जैसे कोर्ट में प्रोसीडिंग होता है वैसे उसी तरह कंसीलिएटर प्रोसीडिंग्स भी होती है उसे ट्राइब्यूनल में. जो प्रोसीडिंग्स हुई है वो कंसीलिएटर कॉन्फिडेंशियल रखेगा. It will extend the confidential shall extend also to the settlement agreement. जो settlement हुआ है agreement वो भी confidence में रखेंगे unless except किस बात में वो disclose करेंगे, कभी वो disclose करेंगे except where its disclosure is necessary for the purpose of implementation and enforcement. अगर कुछ बात का इम्प्लीमेंटेशन करना है, एनफोर्समेंट करना है, तभी वो बात का डिस्क्लोज करेंगे, अन्यथा नहीं. ऑल द मैटर्स एंड ऑल द सेटलमेंट एग्रीमेंट ऑल द डिस्प्यूट विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियली. इसीलिए कंसिलिएटर के पास जाते हैं, आर्बिट्रेटर के पास जाते हैं, नहीं तो कोर्ट में तो पूरा इतना हंगामा हो जाता है कि पूरी की पूरी बातें बाहर निकल जाती है. तो हियर इट शुड बी टोटली केप्ट कॉन्फिडेंशियली. द टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, अभी सेटलमेंट हो गया है तो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाती है, स्टॉपेज हो जाती है. कभी टर्मिनेट होती है बाय द साइनिंग ऑफ द सेटलमेंट एग्रीमेंट बाय द पार्टीज. अभी पार्टीज ने सिग्नेचर किया है तब ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट तब टर्मिनेट हो जाती है उनकी प्रोसीडिंग्स. बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द कंसिलिएटर, राइटिंग में डिक्लेयर करता है कंसिलिएटर आफ्टर कंसल्टेशन विद द पार्टीज टू द इफेक्ट दैट फर्दर एफर्ट एट कंसिलिएशन आर नो लॉन्गर जस्टिफाइड. अभी प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत नहीं है तो ये रिटन डिक्लेरेशन कंसिलिएटर देता है ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, तभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग स्टॉप हो जाती है यानी टर्मिनेट हो जाती है. बाय अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ द पार्टीज एड्रेस टू द कंसिलिएटर, अगर रिटन डिक्लेरेशन है पार्टीज का लिखा हुआ है और एड्रेस किया है कंसिलिएटर को टू द इफेक्ट दैट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड, के पार्टीज ने लिखा हुआ डिक्लेरेशन एड्रेस किया है कंसिलिएटर को, अभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जानी चाहिए, तो ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन तो टर्मिनेट हो जानी चाहिए, तब वो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाती है. और फोर्थ पॉइंट, बाय अ रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ ए पार्टी टू द अदर पार्टी, एक पार्टी दूसरे पार्टी में रिटर्न डिक्लेरेशन देता है एंड द कंसिलिएटर, और कंसिलिएटर को भी देता है. इफ अपॉइंटेड, अगर कंसिलिएटर अपॉइंटेड हो गया है टू द इफेक्ट दैट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स आर टर्मिनेटेड, कि
कंसिलिएशन जो प्रोसीडिंग्स है अभी वो टर्मिनेट हो जानी चाहिए ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। जिस दिन वो डेट का डिक्लेरेशन होता है तो टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स विल बी टर्मिनेटेड। ओके, नाउ वी विल सी द कॉस्ट। तभी सेक्शन 78 कॉस्ट के बारे में बोलता है कि कॉस्ट कौन बेयर करेगा। तो कॉस्ट का मतलब क्या है? कॉस्ट मीन रीजनेबल कॉस्ट रिलेटिंग टू, यानी कॉस्ट कितना होगा, द फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कंसिलिएटर, फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कंसिलिएटर एंड विटनेस रिक्वेस्टेड बाय द कंसिलिएटर, यानी कोई विटनेस है, रिक्वेस्ट किया है कंसिलिएटर है, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, तो ये कॉस्ट उसको बेयर करना ही पड़ेगा। एनी एक्सपर्ट एडवाइस रिक्वेस्टेड बाय द कंसिलिएटर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज, द कॉस्ट उसका बेयर करना पड़ेगा। फीस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द कंसिलिएटर, एक्सपर्ट एडवाइस उसका तो कॉस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट एडवाइस जो कंसिलिएटर लेता है तो वो कंसेंट ऑफ पार्टीज के द्वारा ही लेता है, तो उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा। एनी असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन और पर्सन इन परस्यूएंट टू क्लॉज सब सेक्शन 2 सेक्शन 64 एंड सेक्शन 68, या कुछ असिस्टेंट प्रोवाइडेड की है इंस्टीट्यूशन के द्वारा तो उसका कॉस्ट पार्टीज को बेयर करना पड़ेगा। और एनी अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स एंड द सेटलमेंट एग्रीमेंट, और कुछ एक्सपेंसेस बेयर किया है पार्टीज ने कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स द्वारा या सेटलमेंट एग्रीमेंट द्वारा, तो पार्टीज हैज टू बेयर द कॉस्ट। द कॉस्ट शैल बी बोर्न इक्वली बाय द पार्टीज, जो दोनों पार्टीज है, जितने भी पार्टीज है, इक्वली कॉस्ट को बेयर करेंगे, अनलेस द सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ए डिफरेंट अपॉर्चनमेंट। All the other expenses incurred by a party shall be borne by that party। कुछ भी और अदर एक्सपेंसेस है incurred किया है पार्टी ने तो वो सब पार्टी दोनों इक्वली बोन करेंगे। ओके, नो वी विल गो फॉर द डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? द कंसिलिएटर में डायरेक्ट ईच पार्टी टू डिपॉजिट एन इक्वल अमाउंट एज एन एडवांस फॉर द कॉस्ट रेफर्ड इन सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 78 विच ही एक्सपेक्ट विल बी इनकर्ड। तो कंसिलिएटर डायरेक्ट करता है कि भाई ये जो कॉस्ट बोन हुआ है एडवांस में या कुछ पहले ही दे दे, विच ही एक्सपेक्ट्स विल बी इनकर्ड, यानी कुछ आगे ऐसा संभावना हो सकती है कि भाई वो खर्चा हो सकता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स द कंसिलिएटर में डायरेक्ट सप्लीमेंट्री डिपॉजिट, यानी प्रोसीडिंग्स के समय कंसिलिएटर डायरेक्ट कर सकता है पार्टीज को कि भाई सप्लीमेंट्री डिपॉजिट इन इक्वल अमाउंट फ्रॉम ईच पार्टी से सप्लीमेंट्री डिपॉजिट भी करवा सकता है प्रोसीडिंग्स के समय। इफ रिक्वायर्ड डिपॉजिट्स मेंशन्ड हियर इन अबव आर पेड इन फुल बाय बोथ द पार्टीज, अगर डिपॉजिट किया है फुल बोथ द पार्टीज ने विद इन 30 days, द कंसिलिएटर, अगर पार्टी ने दोनों ने पे नहीं किया है, अगर पार्टी ने रिक्वायर्ड डिपॉजिट जो कंसिलिएटर ने बोला है, अगर पार्टी ने पे नहीं किया है फुल बोथ द पार्टीज विद इन द 30 days, द कंसिलिएटर में सस्पेंड द प्रोसीडिंग्स और में मेक ए रिटर्न डिक्लेरेशन ऑफ टर्मिनेशन। तो वहाँ पे कंसिलिएटर क्या करेगा? सस्पेंड करेगा प्रोसीडिंग्स को और रिटर्न डिक्लेरेशन में देगा कि भाई टर्मिनेशन हो गई है प्रोसीडिंग्स की, एंड विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ दैट डिक्लेरेशन। जिस दिन से वो रिटर्न डिक्लेरेशन पार्टीज के हाथ में मिल जाता है तब वो उसमें ये मानना चाहिए कि अभी प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ेगी। एंड इफ यू वांट एनी सेटलमेंट यू हैव टू बेयर द कॉस्ट एंड deposit the money whatever the conciliator says. So upon the termination of the conciliation proceedings, the conciliator shall render an accounting to the parties to the deposit received. अगर टर्मिनेशन हो गया है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स का, द कंसिलिएटर शेल रेंडर एन अकाउंटिंग, कंसिलिएटर अकाउंट्स दिखाएगा पार्टीज को, जो पार्टीज ने डिपॉजिट किया है अगर कंसिलिएटर ने रिसीव किया है, शेल रिटर्न एनी अनएक्सपेक्टेड बैलेंस टू द पार्टीज। तो कंसिलिएटर रिटर्न करेगा वो बैलेंस पेमेंट को पार्टीज को रिफंड करेगा, उसमें रिटर्न करेगा। सो ओके, दिस इज अबाउट द डिपॉजिट्स and we will go role of conciliator in other proceedings. See, the conciliator shall not act as an arbitrator. जो कंसिलिएटर है वो कंसिलिएटर की तरह ही एक्ट करेगा, ना कि आर्बिट्रेटर या रिप्रेजेंटेटिव या काउंसिल ऑफ ए पार्टी
काउंसलर नहीं है, वो पार्टी का काउंसिल नहीं है. In any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject of conciliation proceedings. Okay, he will act as a conciliator only and not a arbitrator, representative, counselor और judicial proceedings में वो witness नहीं बनेगा. The conciliation shall not be presented by the parties as a witness in any arbitral or judicial proceedings. जो conciliator है तो दूसरे जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में वो विटनेस बन के नहीं जाएगा, बिकॉज ही इज ए कंसीलिएटर एंड नॉट ए विटनेस. ओके, एंड एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस इन अदर प्रोसीडिंग्स. द पार्टी शैल नॉट रिले ऑन or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings whether or not such proceedings relate to the dispute that is the subject matter of conciliation proceedings. See here, views expressed or suggestion made by the other party in respect of a possible settlement of the dispute, admission made by the other party in the course of the conciliation proceedings, proposal made by the conciliator, and the fact that the other party had indicated his willingness to accept a proposal for the settlement made by the conciliator. Okay, so all the above provision outline a detailed procedure for conducting conciliation proceedings. With such statutory recognitions to conciliation, the parties involved in the dispute are in the position to avail one of the effective methods of ADR. See, the parties जो इन्वॉल्व हुई है डिस्प्यूट में, दे कैन अवेल, यानी उसमें चारों में से एक आध इफेक्टिव मेथड वो अडॉप्ट कर सकते हैं. सो इट इज pertinent to note that the parties may initiate conciliation even during the pendency of any court. अगर conciliation proceedings हो रही है, pendency है, तो पार्टीज कोई दूसरे कोर्ट में भी जा सकते हैं. आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग द सेम डिस्प्यूट, उस सेम डिस्प्यूट के तहत दूसरे कोर्ट में भी जा सकते हैं विदाउट प्रिजुडाइज टू देयर रेस्पेक्टिव स्टैंड इन दोज प्रोसीडिंग्स. इफ सच कंसिलिएशन सक्सीड्स दे रिपोर्ट टू द कोर्ट. अगर कंसिलिएशन मैटर यहाँ पे सक्सीड हो गया है तो वो रिपोर्ट कर सकते हैं कोर्ट को. आर्बिटर और द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल को भी कह सकते हैं कि हमारा मैटर यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गया है. एज द केस में बी, हु मे पास ए डिक्री और आर्बिट्रल अवार्ड इन टर्म्स ऑफ सच सेटलमेंट. तो इसमें कोर्ट पास कर सकता है डिक्री और आर्बिट्रल अवार्ड भी दे सकते हैं इन टर्म्स ऑफ सच सेटलमेंट में. So it should be kept in the mind that the provision of the new Act of 1996 prohibits the conciliators and parties from disclosing information exchanged during conciliation proceedings and producing as evidence in arbitral and other proceedings any views expressed, submission, admission made or proposal expressed made, provided full protection to the parties so that they can resolve the disputes through conciliation without any risk. यहाँ पे माइंड में रखना चाहिए जो कुछ डिस्क्लोज हुआ इंफॉर्मेशन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स में हुआ, जो एविडेंस हुआ, जो सबमिशन, एडमिशन यानी प्रपोजल, जो कुछ भी एक्सप्रेस किया है पार्टी ने, तो उसको फुल डिस्क्लोज नहीं करेंगे, कॉन्फिडेंशियली रखेंगे. तो देयर शुड व्हेन द मैटर हैज बीन रिजॉल्व्ड, तो it will give a protection to the parties. If you disclose, there will be a risk. So measure should be taken कि भाई कुछ भी बातें जो हुई है वो बाहर न आए और उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखे कंसिलिएटर. ओके okay, there are certain other provisions of the act in a nutshell. See here, any person who is competent to contract can enter into a valid arbitration agreement. जो कोई कॉम्पिटेंट पार्टी है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो एक क्लॉज लिखता है arbitration agreement that is valid. See, the method of ADR is mainly used in business sector. ये जो मेथड है कंसिलिएशन आर्बिट्रेशन का, ये मेथड है, ये कहाँ पे मेनली यूज़ होता है? बिजनेस सेक्टर लाइक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, शिपिंग, ट्रांसपोर्ट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पार्टनरशिप, डिस्प्यूट एक्सेट्रा. तो इसमें ये ज़्यादा यूज़ होता है.
On the other hand, disputes relating to insolvency, matter of criminal nature, matter relating to charitable trust etc. cannot be referred to arbitration. जो criminal matters है वो यहाँ पे रेफर नहीं हो सकता है क्योंकि वो criminal matters कोर्ट में ही जाते हैं. So the arbitral tribunal may be constituted by one or more arbitrators. So the appointment of arbitrators may be made with or without the mutual consent of disputing parties. अपॉइंटमेंट हो सकता है, कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, डिस्प्यूटिंग पार्टीज ही करेंगे इसका ये ज़रूरी नहीं है. तो द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स may be made with or without the consent of the parties. An arbitrator is a quasi judicial authority appointed by the parties to the dispute. तो उसका जो पोजीशन है, जो अथॉरिटी है आर्बिट्रेटर की, वो एक क्वाजी जुडिशियल की अथॉरिटी है जो अपॉइंटमेंट पार्टीज ने के द्वारा किए डिस्प्यूट आफ्टर रीचिंग म्यूचुअल कंसेंस अमॉन्ग देम. ही शुड बी ए पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी. जो आर्बिट्रेटर रहता है ही शुड बी पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड इंटेलिजेंस, नोन फॉर हिज इम्पार्शियल नेचर एंड रैशनल जजमेंट. इम्पार्शियल नेचर होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए और रैशनल जजमेंट होना चाहिए. ओके, सो एन आर्बिट्रेटर मे बी ऑफ एनी नेशनैलिटी. इन केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल arbitration where parties belong to different nationality, अगर parties different nationality के हैं, the Chief Justice of India has the power to appoint an arbitrator of nationality other than that of parties. तो दूसरे कोई नेशनैलिटी के आर्बिट्रेटर होते हैं, चीफ जस्टिस उनको अपॉइंट कर सकते हैं. एन आर्बिट्रेटर हैविंग पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर इज डिसक्वालिफाइड. अगर उसको किसी इंसान में पर्सनल इंटरेस्ट है तो उसको डिसक्वालीफाई किया जाएगा डिसाइडिंग द मैटर्स. द प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन में बी फिक्स्ड बाय द पार्टी. कि किस प्रोसीजर से द प्रोसीजर ऑफ द आर्बिट्रेशन में बी फिक्स्ड बाय द पार्टी थ्रू एन एग्रीमेंट ओनली. ओके, तो अग्रीमेंट के द्वारा ही उसका आर्बिट्रेशन फिक्स होता है, क्या प्रोसीजर है करके. द अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर शैल बी मेड बाय म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टीज. पार्टीज के म्यूचुअल कंसेंट से ही सोल आर्बिट्रेटर यानी सिंगल आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा. सेक्शन 11 सब क्लॉज 5. द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैन बी चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ जस्टिफाइबल डाउट्स ऑफ हिज इम्पार्शियलिटी. कि अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कब होगा, जब वो जस्टिफाई करेगा कि भाई ये ऑन द ग्राउंड दैट ही इज इम्पार्शियल. ओके, वो चैलेंज किया जाएगा वहाँ पे. तो सेक्शन 12 फिर ये बताते हैं, फॉर मेकिंग ए रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन एन एप्लीकेशन मस्ट बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 3 years व्हेन द राइट टू अप्लाई अक्रूज. तो विद इन ए 3 years आप रेफरेंस कर सकते हैं अपने जो मैटर्स है, डिस्प्यूट का जो मैटर्स है, आर्बिट्रेशन को रेफर कर सकते हैं. ओके, एंड an application for setting aside an arbitral award may be made by a party within 3 months of the receipt of the award by him. यहाँ पे सेक्शन 34 ये भी बताते हैं, अगर आपको आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करना है तो अप्लीकेशन शुड बी मेड विद इन 3 months ऑफ द रिसिप्ट बाय द अवार्ड. जो जिस दिन अवार्ड मिला है, अगर आपको ये पसंद नहीं आया है अवार्ड को, आपको सेट असाइड करना है तो यू हैव टू मेक एन एप्लीकेशन विद इन द 3 months. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट अमेंडमेंट 2021. यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 कुछ अमेंडमेंट हुआ है जो 2021 में अमेंड हुआ था, यानी अमेंडमेंट यानी कुछ चेंजेस हुआ था. सी ऑन March 10, 2021 द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 वॉज पास्ड एंड इज डीम्ड टू हैव कम इनटू फोर्स ऑन 4 November 2020. ये 2021 में पास हुआ था, लेकिन ऐसा माना गया है कि इट केम इनटू फोर्स ऑन 2020 में, November 4, 2020 में ये अमेंड हुआ था ये करके, लेकिन वो पास आउट हुआ था 2021 में.
So the Amendment Act tries to address the issues of corrupt practice in securing contracts or arbitral awards. तो यहाँ पे अमेंडमेंट इसलिए हुआ है कि यहाँ पे एड्रेस किया गया है कि कुछ इश्यूज है जो करप्ट प्रैक्टिस चल रही थी आर्बिट्रेशन में कुछ करप्ट प्रैक्टिस या कॉन्ट्रैक्ट्स में आर्बिट्रल अवार्ड्स कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे थे, तो उसमें अमेंडमेंट हुआ था, ये 2021 इसलिए कहा गया है. सो दिस अमेंडमेंट एक्ट बाय वे ऑफ एक्सप्लेनेशन सेक्शन 34 subsection 2 clause B clause 2 provides that an award may be set aside if the court is to find that the making of arbitral award has been induced or affected by fraud or corruption that is in the conflict with the public policy in India. CA अमेंडमेंट ये कहता है कि अगर कुछ ऐसा अवार्ड दिया है आर्बिट्रल वालों ने, आर्बिट्रल अवार्ड ऐसा हुआ है कि वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, तो कोर्ट यहाँ पे सेट असाइड कर सकता है करके, वो वहाँ पे सेट असाइड कर सकता है. तो अमेंडमेंट एक क्लॉज का हुआ है. So prior to the enactment of the Amendment Act, the Act stipulated that the parties to the arbitration would approach to the court to file an application challenging said award on the ground set forth in Section 34, which include inter alia proof of invalidity of arbitration agreement by an application party, finding of the court that the subject matter of dispute is not capable of settlement by arbitration, एक्सेट्रा. सो प्रीरियर अमेंडमेंट में ये स्टिपुलेशन ऑफ द पार्टीज था कि आर्बिट्रेशन कुड अप्रोच टू द कोर्ट टू फाइल एन एप्लीकेशन. तो आपको प्रीरियर टू द एनेक्टमेंट अमेंडमेंट ये था कि जो कोई पार्टी है आर्बिट्रेशन में, तो वो चैलेंज करते थे अवार्ड को, तो दे हैव टू फाइल ए एप्लीकेशन इन द कोर्ट. नाउ देयर इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ सेटलमेंट कि भाई ये अभी ये चेंजेस हुआ है अमेंडमेंट का, आप सेट असाइड कर सकते हैं. ओके, तो यू नीड नॉट हैव टू टेक दिस अवार्ड. आप एप्लीकेशन एक कॉन्फ्लिक्ट के अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, तो आप उसको सेट असाइड कर सकते हैं. सो हियर द नेक्स्ट पॉइंट इज फर्दर मोर, ये इम्पॉर्टेंटली ये नोट यहाँ पे होना चाहिए कि अगर आपने एप्लीकेशन दायर किया है कोर्ट में कि भाई आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट आपने कुछ एप्लीकेशन दिया है कि भाई सेट असाइड करना है, तो एप्लीकेशन डालने का ये मतलब नहीं है कि भाई ये अवार्ड अनएनफोर्सिबल हो गया है करके. तो वो कहने वाले वो कोर्ट के पास अधिकार रहेगा. तो कोर्ट विल हैव द पावर टू ग्रांट द स्टे ऑफ द अवार्ड, तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज इट मे डीम फिट. अगर कोर्ट को लगता है कि भाई कुछ कंडीशंस है, कुछ है इसका कुछ, अगर इट इज ए सब्जेक्ट अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसको सेट असाइड करना है, तो द कोर्ट विल हैव द पावर. एप्लीकेशन डालने से ही इट इज़ अनएनफोर्सिबल ये माना नहीं जाएगा. इट इज़ एनफोर्सिएबल. अनएनफोर्सिएबल कब होगा? जब कोर्ट बोलेगा तभी. एप्लीकेशन डालने से ही ये नहीं बोल सकेंगे कि भाई हम लोगों ने एप्लीकेशन डाल दिया है तो ये अनएनफोर्सिबल हो गया है करके. नो. तो certain amendments have been taken place in 2021 and further 8th schedules में इतने सारे sections वो changes हुए हैं. So the next we will see the arbitration shall be a person of general reputation of fairness, integrity and capable of applying objectivity in arriving at a settlement of disputes. तो ये खुद का fairness, integrity और capable of applying objectivity, तो जो पे disputes है parties का, जो जनरल रेप्यूटेशन है पार्टीज की, उसमें वो इंटीग्रिटी रखेंगे. ओके, तो डिस्प्यूट होने से कोई इंसान कम नहीं हो जाता है, तो उनका रिगार्ड रखेंगे वो. एंड आर्बिट्रेटर मस्ट बी इम्पार्शियल एंड न्यूट्रल. इम्पार्शियल होगा, न्यूट्रल होगा एंड अवॉइड एंटरिंग इनटू फाइनेंशियल बिजनेस. उनका जो फाइनेंशियल बिजनेस है आर्बिट्रेटर एंटर नहीं होगा, या फिर उनका रिलेशन दैट इज लाइकली टू अफेक्ट इम्पार्शियलिटी और माइट रीजनेबली क्रिएट एन अपीयरेंस ऑफ पार्शियलिटी और बायस अमॉन्ग्स द पार्टी. तो यहाँ पे arbitrator he must be impartial and neutral, and he should avoid all financial businesses or other relationships that is likely to affect his impartiality or might reasonably create an appropriate partiality. तो नियर रिलेशनशिप न रख के इम्पार्शियल और न्यूट्रल बने रहे. तो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे द आर्बिट्रेटर शुड अवॉइड एनी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट.
द कॉन्फ्लिक्ट खुद के बीच में ही हो जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए. पार्टीज कंसिलिएटर के पास क्यों आती है? उनका डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए. तो आर्बिट्रेटर शुड अवॉइड पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट. खुद कॉन्फ्लिक्ट में आ गए तो फिर वो सोल्यूशन क्या देंगे फिर? तो ही शुड अवॉइड दैट कॉन्फ्लिक्ट कि भाई पार्टीज दोनों पार्टीज उसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट में ना आ जाए, यानी दोनों पार्टीज कंसिलिएटर के पास डिस्प्यूट न करे. So the arbitrator should be capable of suggesting, recommending or writing a reasoned and enforceable arbitral award in any dispute which comes before him for adjudication. Okay. So today we have completed this fourth chapter, Arbitration and Conciliation Act. So we have completed all the fourth chapters. Okay. We will end this video now.